Okay, so now let us move on to the next question. अभी ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है. Solve the triangle in which side A is given as 72 centimeter, angle B and angle A is given to us. Now solve the triangle means remaining चीजें फाइंड करनी है. Now recollect when we have started with the properties of triangle, मतलब ये जो पार्ट हमने स्टार्ट किया था सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल वाला, there are total 6 elements, 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं. So now we have to solve for the remaining elements. ठीक है? This is all about. Now this question can be asked for 3 to 4 marks. ठीक है? It depends. Surely नहीं बता सकता. 3 से 4 मार्क के लिए आएगा ये एग्जाम्पल. चलिए write down solution. चलो first thing is angle A and B is already known, तो angle C हमें मिल जाएगा. चलो start solving and find out angle C. We know sum of all the angles of a triangle measures 180 degrees. वहां से हम स्टार्ट करेंगे. So we know that A plus B plus C. ऐसा आप लिख सकते हो. Angles ABC are the 3 angles of a triangle. So angle A plus B plus C is nothing but equal to 180 degree. Now therefore angle A and B already known. 108 degree plus 25 degree plus C is equal to 180 degrees. Solve and tell me how much is angle C measuring. 47 degree. Absolutely correct. Angle C is nothing but equal to 47 degrees. तो एंगल सी स्टूडेंट्स हमें मिल गया. तो चाहिए तो ऐसा लिख लो, therefore angle C is measuring 47 degrees. तो एक पार्ट तो हो गया. एंगल C we have got it. ठीक है, तो आई होप must have reached till here. This part ये हो चुका होगा आपका. Now we want to find out the remaining things. ठीक है, तो राइट डाउन. अभी हम यहाँ पर साइन रूल का यूज करने वाले हैं. ठीक है, आफ्टर फाइंडिंग आउट एंगल C. तो राइट डाउन बाय साइन रूल. ये आप एंगल C इज इक्वल टू 47 डिग्रीज लास्ट में भी जाके लिख सकते हो. C इज इक्वल टू 47 डिग्रीज लिख दिया तो भी चलेगा. नाउ यू राइट डाउन बाय साइन रूल. नाउ व्हाट डू वी गेट बाय साइन रूल? व्हाट डू वी नो? दैट A बाय साइन A is equal to B by sin B is nothing but equal to C by sin C. जरा लॉग टेबल आप सामने खोल के रखना. Now initially we will require sine table. Natural sine table होता है ना, वो लगेगा हम. Now small a equal to k मत लिखो, we'll just equate them. Small a is 72, so 72 by sine of angle A, so that is sine of 25 degree is equal to small b, तो हमें फाइंड करना है साइन ऑफ एंगल B. एंगल B is 108 degrees is equal to small c हमें फाइंड करना है and angle C is 47 degrees. So this is nothing but sin 47 degrees. तो ये आप लिख लो. So now everything is known to us except for side B and side C. टोटल 6 एलिमेंट्स है, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको. 3 एंगल्स होते हैं और 3 साइड्स होते हैं. स्मॉल ABC आर द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल एंड एंगल ABC कैपिटल ABC आर द एंगल्स. अभी हमें B और C चाहिए, तो पहले हम क्या करेंगे? फ्रॉम हियर वी विल फर्स्ट फाइंड आउट B. क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहले B का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, फिर हम C का वैल्यू फाइंड करेंगे. ओके, तो राइट डाउन देयरफॉर फ्रॉम हियर, यहाँ से आप लिखो small b. B is equal to what? So B is equal to 72 into sine of 108 degree, this into this, upon sine 25 degrees. ठीक है, चलो write down this part. ये दोनों को मैं इक्वेट कर रहा हूं because I want to find out unknown B. Now write down this will be further equal to 72 remaining same. Now sine of 108 degrees. Now 108 degrees means it is nothing but 182 minus 180 minus 72 हमें 108 देगा upon sine 25 degree remaining same. एक्चुअली मतलब this is nothing but ये हो जाएगा sine 72 डिग्री, पर मैंने आपके रेफरेंस के लिए लिख दिया वो स्टेप.
Now why so? Because if you observe your natural sine table, तो natural sine table में 89 डिग्रीज तक ही कैलकुलेट कर सकते हो आप, और यहाँ पे 108 डिग्रीज कैलकुलेट करना है, तो you will have to do this procedure. ठीक है, तो therefore B is further equal to 72 remaining same. This is going to become sine of 72 degrees upon, in the denominator we are having sine 25 degrees. Please check with this procedure. सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, खाली हमें सिंपल फंडास अप्लाई करने हैं. नाउ प्लीज ओपन अप योर साइन टेबल, नेचुरल साइन टेबल. अभी उसमें आप देखो साइन टेबल में साइन ऑफ 72 डिग्रीज, साइन ऑफ 72 डिग्रीज, तो इट इज नथिंग बट 0.9511. Have you located this everyone? मिला आपको ये साइन 72 डिग्रीज का? Yes. ओके, अभी आप देखो साइन 25 डिग्रीज का वैल्यू. ओके, तो साइन 25 डिग्रीज इज 0.4226. ये साइन 25 डिग्रीज का वैल्यू है. तो जो नेचुरल साइन टेबल है ना, वो हम यूज कर रहे हैं, लॉग टेबल. ठीक है, वी आर यूजिंग लॉग टेबल्स. नाउ दिस प्रोसीजर वी हैव लर्नड इट इन 11th स्टैंडर्ड. अच्छा, अभी ये जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर्स तो अलाउड नहीं है, calculators are not allowed in exam, so now we have to use log tables. So b is equal to this, therefore log b to the base 10 is equal to, लिखो, this will be written as log of 72 to the base 10 into, convert हो जाएगा प्लस में, this will be log of 0.9511 to the base 10, and division convert हो जाएगा माइनस में log of 0.4226 to the base 10 आएगा. By using the laws of logarithm we are simplifying. वो तो आपके रेफरेंस के लिए, नहीं तो आप log 72 डायरेक्टली प्लस माइनस करके फाइंड कर सकते हो, ऐसा कोई ये स्टेप्स लिखने जरूरी नहीं है. तो therefore log b to the base 10 is equal to, now pick up your log tables. नेचुरल साइन टेबल यूज कर रहे थे, अभी log tables पे आ जाओ आप. log 72, अब 72 का कैरेक्टरिस्टिक्स है 1. अभी 72 में आप 0 देखो, चेक आउट 72 में 0, तो 72 में 0 इज हाउ मच? तो 0.8573. चेक आउट, तो log 72 इज 1.8573 है. ठीक है, प्लस नाउ इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है बार 1. अभी 0.95 में 1 में 1 देखो आप, 0.95 में 1 देखो आप, तो व्हाट विल यू गेट? टेल मी. 0.95 में 1 में 1, तो व्हाट इज दैट वैल्यू आफ्टर द डेसिमल? 9782. एब्सोल्युटली परफेक्ट, इट इज 9782 है, बराबर है. वैसे इसका भी कैरेक्टरिस्टिक्स 1 है, डेसिमल के बाद आप बोलो 0.4226 का क्या वैल्यू आएगा? 0.4226, 42 में 2 में 6 देखने का, 6259. 6259, yes, correct. It is 6259, absolutely. बस अभी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ बार नंबर्स हमें करना है, तो लेट्स क्विकली डू दैट. तो therefore log b to the base 10. अभी ये आप प्लस माइनस इसका एज अ रफ वर्क कर सकते हो. ठीक है, अभी देखो सबसे पहले तो ये दोनों को ऐड करना है, तो इसको 3 + 2, थोड़ा मैं डायरेक्टली लिखते हैं हम इसको, 3 + 2 5 हो जाएगा. ये 7 + 8 15, 5 1 कैरी फॉरवर्ड. ठीक है, तो 1 कैरी फॉरवर्ड होके यहाँ पे आ जाएगा. 12 1 13, 3 1 कैरी फॉरवर्ड, 10 + 8 18, 8 1 कैरी फॉरवर्ड, ये 1 1 गया. इट इज 1.8355. ये दोनों को आप ऐड करोगे तो इट इज 1.8355. चेक, हैव यू गॉट दिस? और फिर उसमें से हमें बार 1.6259 सब्ट्रैक्ट करना है. ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा. तो चलो कैलकुलेशन आप करो इसका. प्लीज स्टार्ट डूइंग दिस कैलकुलेशन इज कंसर्न. तो 15 - 9, तो ये आ जाएगा 6.
नाउ कैरी फॉरवर्ड, ये हो जाएगा 14. जस्ट टेल मी दिस कैलकुलेशन. चलो एटलीस्ट डेसिमल के ये साइड का तो आप मेरे को बता ही सकते हो. टेल मी द राइट हैंड साइड ऑफ द डेसिमल. 2096. एब्सोल्युटली परफेक्ट. इट इज 2096. तो मैं पहले ही लिख चुका हूँ. आपको पता है कैरी फॉरवर्ड, ये ना 5 कट करके ये हो जाएगा 14. 14 माइनस 5 इज 9. फिर ये कट करके 2 एंड ऑल दैट, यू नो, वी सबट्रैक्ट. अभी बट नाउ व्हाट इज द लेफ्ट हैंड साइड? कैन एनीवन टेल मी एलएचएस क्या है? तो इट इज माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा. ये देखो ये बार 1 है. बार 1 मीन्स इट इज -1. तो माइनस ऑफ माइनस प्लस, तो 1 + 1 ये हो गया 2. तो इट इज 2.2096. ये जो पूरा कैलकुलेशन है ना प्लस माइनस वाला, इट इज नथिंग बट इक्वल टू 2.2096. तो ये ऐसा कैलकुलेशन आप रफ वर्क में आपके रेफरेंस के लिए कर सकते हो. अभी आप पहले ऐड करो फिर सब्ट्रैक्ट करो, या पहले सब्ट्रैक्ट करो फिर उसको ऐड करो, उससे आंसर पे फर्क नहीं पड़ने वाला है. इट्स गोइंग टू बी द सेम. ठीक है, चलो. तो आई जस्ट रब दिस ऑफ 2.2096. दिस इज log b to base 10. ठीक है. तो देयरफॉर हाउ मच इज वैल्यू ऑफ b? तो देयरफॉर स्टूडेंट्स लिखो b का वैल्यू विल बी एंटी लॉग ऑफ 2.2096. b का वैल्यू इस वैल्यू का एंटी लॉग होगा. अभी हमें देखना पड़ेगा स्टूडेंट्स एंटी लॉग टेबल. ध्यान से देखो, मैंने बहुत बार देखा स्टूडेंट लॉग टेबल देखते देखते लॉग टेबल देख के इसका आंसर लिखता है. एंटी लॉग टेबल देखना है तो प्लीज ओपन अप एंटी लॉग टेबल. और एंटी लॉग टेबल डेसिमल के बाद स्टार्ट होता है. 0.20 में 9 में 6 देखने का है. 0.20 में 0.20 में 9 में 6 देखना है. तो हाउ मच इज द टोटल? 1620. एब्सोल्युटली करेक्ट, परफेक्ट है. इट इज 1620. अच्छा, उसके बाद क्या तरीका है इसमें डेसिमल डालने का? आफ्टर द 1 प्लेस इनटू 10 to the power 2. दिस इज वन ऑफ द वे. ये मैं ऐसा करता हूँ. दिस इज जनरली द वे इट इज फॉलोड. 1620 लिखा, उसके बाद फर्स्ट प्लेस के बाद डेसिमल डालने का इनटू 10 के पावर में ये जो नंबर है वो उधर जाएगा. दैट इज द वे. तो देयरफॉर b का वैल्यू इज हाउ मच? यू जस्ट शिफ्ट द 2 decimals. तो आंसर इज 162. now this b is the side and side means it is the length. तो small b is 162 centimeters. हो गया प्रॉब्लम सॉल्व. मतलब नॉट कंप्लीटली. हाँ, b का वैल्यू मिल गया. अभी हमें स्मॉल c का वैल्यू चाहिए स्टूडेंट्स. we want the value of small c. So this is how we are going to use the sign table and with the help of that also the log table. तो small b का वैल्यू आ गया 162 सेंटीमीटर. तो मेरे रेफरेंस के लिए मैं लिख के रखता हूँ स्मॉल b का जो वैल्यू है वो 162 सेंटीमीटर है, बिकॉज आई हैव टू रब दिस ऑफ. चलो अभी हम स्मॉल c का वर्किंग करेंगे. If you have still not written, please just take a screenshot of this and you can complete it later on. अब ये log table का जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा जरा फटाफट होना चाहिए. ओके, तो चलो. नाउ स्मॉल b का वैल्यू मिल गया. नाउ लेट अस फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ स्मॉल c. अभी देखो sin 25 डिग्रीज का वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं. नाउ यू कैन इक्वेट दिस विद दिस और यू कैन इक्वेट दिस विद दिस. तो भी अपने को c का वैल्यू मिल जाएगा. आइदर ऑफ देम कैन बी यूज्ड. ठीक है, तो चलो इसके साथ करते हैं हम sin 47. लेट अस डू विद sin 25 डिग्री, क्योंकि 72 ऑलरेडी पता है ना अपने को. तो चलो लेट अस डू दैट, क्योंकि ये फिर 162 है b का वैल्यू. So I just drop off this side. We have got the value of small b, and for my reference I have written that small b का value over there. ये नीचे मैंने मेरे रेफरेंस के लिए लिखा हुआ है. चलो, now solve it ahead. Let us equate them and let us find out the value of c. So therefore from here small c is equal to what? 72 into sin 47 degrees upon, in the denominator it is sin 25 degrees. ठीक है, 72 remaining same, sin 47 degrees, sin 25 degrees का वैल्यू तो हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं. लेट मी टेक माय टेबल. चलो टेल मी हाउ मच इज वैल्यू ऑफ sin 25 डिग्रीज का वैल्यू 0.4226 था, if I am not wrong.
जस्ट टेल मी साइन 47 डिग्रीज, साइन 47 डिग्रीज का वैल्यू 0.731. या हाउ मच इज इट 0.7314 ओके चलो ठीक है, साइन 47 डिग्रीज का ये वैल्यू है। ठीक है, आई विल चेक बाय दैट टाइम यू नोट डाउन। साइन 25 डिग्रीज का तो हमने पहले भी फाइंड किया। चलो नाउ टेक लॉग ऑन बोथ द साइड्स एंड सिंप्लीफाई। आई गिव यू टाइम ऑफ 2 minutes टू डू द कैलकुलेशन वाला पार्ट। ठीक है, साइन 47 या करेक्ट। चलो अभी सॉल्व करके जल्दी से c का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देयरफॉर log c टू बेस 10 इज इक्वल टू, अभी इसका आप डायरेक्टली वो लॉग वाला स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। दिस इज 1 पॉइंट हम पहले भी फाइंड कर चुके हैं। दिस इज log ऑफ 72 टू बेस 10 प्लस दिस विल बी log ऑफ, चलो अभी इसको डायरेक्टली करते हैं। अब लॉग लेके करके बताया ना मैंने आपको। नाउ लेट अस डू इट डायरेक्टली, इसको थोड़ा हम डायरेक्टली करते हैं। अब 72, तो 72 का क्या आया था अपने को, वी हैव गॉट इट एज 1 पॉइंट। नाउ जस्ट टेल मी log 72 का वैल्यू क्या था, log 72 का 1.8573. ओके 1.8573 करेक्ट। ठीक है, इनटू कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, और इसका वैल्यू आएगा बार 1 पॉइंट। लॉग ऑफ 0.73 में 1 में 4 देखो आप, 8641. 8641 ओके, बार 1.841 ओके फाइन। और डिवीजन सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसका भी बार 1 पॉइंट समथिंग, और वो समथिंग हम पहले भी फाइंड कर चुके हैं, कुछ 6259 था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जस्ट चेक। बराबर है ना, 6259 है, हाँ दैट इज व्हाट आई रिकलेक्टेड। तो ये इसके वैल्यूज हो गए। चलो अभी फटाफट ये दोनों को आप ऐड कर लो और इसको सब्ट्रैक्ट करो, तो दैट विल बी log c टू बेस 10 इक्वल्स, ये पूरा कैलकुलेशन आप करोगे, ये दोनों को ऐड करो, जो आंसर आएगा उसमें से ये सब्ट्रैक्ट करो, या तो फिर ये दोनों को पहले सब्ट्रैक्ट करो, जो आंसर आएगा उसको ये ऐड कर दो। एंड टेल मी log c टू बेस 10 इज, इधर क्या नंबर आना चाहिए, ये नंबर मेरे को आप बताओगे इसको सिंप्लीफाई करके। यू विल सिंप्लीफाई दिस होल थिंग and tell me one single number that we will obtain over here without an error. Please do the calculation. $2.0955. 0.0955 okay okay, others also please check 2.0955 आएगा क्या, देखो others also got the same value, just check and give in the clearance. Yes. okay चलो ठीक है, so let's proceed ahead. तो ये log c to the base 10 है, therefore c will be anti log of, आप anti ऐसा भी लिख सकते हो, anti log of 2.0955। ठीक है, c means this is side c है, ये छोटा c है, therefore small c is equal to, अभी anti log टेबल देखो, 0.09 में 5 में 5, anti log में 1246. 1246 ओके Six. चलो 1246 I agree along with you। चलो 1246.0, हाँ बराबर है 1246। अभी क्या करना है, तो पुट अ डेसिमल आफ्टर वन प्लेस इनटू 10 टू द पावर 2, 10 रेज़ टू 200 है, तो ये शिफ्ट हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू 124.6 सेंटीमीटर हो गया। c इज इवेल्युएटेड, तो हो गया ना, सब हो गया, एवरीथिंग इज सॉल्व। स्मॉल a पहले मिल चुका था हमें, आई मीन टू से सॉरी दिया था हमें, स्मॉल b स्मॉल c निकाल लिया, एक एंगल अननोन था तो एक एंगल हमने फाइंड किया, तो टोटल 6 एलिमेंट्स वी नो ऑल, 3 साइड, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c का वैल्यू, एंगल a एंगल b एंड एंगल c, वी हैव ऑब्टेन्ड एवरीथिंग, दैट्स इट, प्रॉब्लम इज ओवर। तो चाहिए तो फाइनल आंसर लिख लो आप, राइट ऑन फाइनल आंसर आफ्टर दिस, हेंस एंगल सी हमने फाइंड कर लिया,
angle C is 47 degree, small b, just tell me how much was the value of small b? I think so 162 था. Yes, sir. Yeah, okay. Small b 162 सेंटीमीटर है और स्मॉल c का वैल्यू है 124.6 सेंटीमीटर. ट्रायंगल सॉल्व हो चुका है. तो ट्रायंगल सॉल्विंग का मतलब है फाइंड आउट द रिमेनिंग एलिमेंट. अच्छा, अभी प्रॉब्लम में भी कॉम्बिनेशन आ सकता है. वो दो एंगल एक साइड देगा, फिर टू साइड वन एंगल, है ना. ऐसे सब कॉम्बिनेशंस वो करके प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकता है. प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस. इसमें साइन टेबल एंड लॉग टेबल हमने दोनों का इस्तेमाल कर लिया है. प्रॉब्लम इज ओवर फाइनली. तो 3 to 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन का वेटेज है. ओके, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस. आई होप प्रोसीजर इज अंडरस्टूड टू ऑल. पूरा प्रोसीजर क्लियर है प्रॉब्लम का? Yes, sir. ओके, वेरी गुड. तो सी हाउ द नॉलेज हेल्प्स. लॉग टेबल का जो प्रोसीजर है जो हम 11th स्टैंडर्ड में सीखते हैं वो हमेशा काम आने वाला है. केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में भी, मैथ्स में तो आता ही है. ओके, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस. स्टूडेंट्स, तो प्लीज नोट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि जरा एक्स्ट्रा प्रॉब्लम है इसलिए मैंने स्टार मार्क किया है. नाउ वी हैव टू सॉल्व द ट्रायंगल इन विच all the three sides are known. Side A, side B and side C. Now solve the triangle means it is obvious कि हमें find करना है angle A, angle B and angle C. Now we will not be using sine rule over here. Now we will be using cosine rules to find out the angles A, B and C. We'll be using cosine rules to find out the angle A, B and C. Write down solution. Write down. We know that. तो सबसे पहले तो cos A से स्टार्ट करते हैं. तो cos A का क्या फॉर्मूला है? तो इट इज b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc. वैल्यूज ऑलरेडी नोन. सब्स्टिट्यूट, सॉल्व फॉर cos A. चलो स्टार्ट डूइंग. डायरेक्टली करो, कुछ शो करने की जरूरत नहीं है. तो देयरफॉर cos A इज इक्वल टू b का स्क्वायर 1 प्लस c का स्क्वायर 3 माइनस a का स्क्वायर 4 अपॉन 2bc. b इंटू c, b इंटू c इज √3. तो ये 2√3 हो जाएगा. एंड ऑब्वियसली दिस इज 0 इक्वल टू 0 है. ये न्यूमरेटर 0 है ना. तो cos ऑफ एंगल A इज 0. तो हाउ मच इज एंगल A? cos of angle A is 0. So how much is angle? Yes, angle A is 90 degrees. हो गया. चलो solve for the other one. 90 degrees लिखो या pi/2 radians लिखो. Anything will do. Or even you can write down in form of radians. pi/2 radians है. जनरली हम कोशिश करते हैं कि सारी चीजें हम रेडियंस में लिखे, बट ऐसा कुछ यहाँ पे कंपलसरी नहीं है फिलहाल. तो चलो अभी एंगल ए मिल गया. अभी cos b का फॉर्मूला यूज करते हैं. नाउ लेट अस यूज द फॉर्मूला फॉर cos b. तो चलो टेल मी व्हाट इज फॉर्मूला फॉर cos b. cos b इक्वल्स व्हाट? A square plus c square minus b square by 2ac. एग्जैक्टली करेक्ट, परफेक्ट. अपॉन 2ac. चलो वैल्यूज डालो, सॉल्व करो एंड फाइंड आउट हाउ मच इज एंगल b इक्वल टू. ठीक है, डायरेक्टली करो. डू नॉट वेस्ट मच टाइम इन दिस एंड शोइंग द स्टेप्स. a स्क्वायर तो 4 प्लस c स्क्वायर इज 3 माइनस b स्क्वायर इज 1 अपॉन 2a इंटू c. तो 2 तो 2 2 जा 4. तो ये है 4√3. ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट 6/4. So you are muted. तो जब हम इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो व्हाट डू वी गेट? आई विल जस्ट राइट डाउन एट द टॉप. यहाँ पे कंटिन्यू कर देता हूँ मैं. तो देयरफॉर cos ऑफ एंगल P इज नथिंग बट इक्वल टू, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इज गोइंग टू बी 3/2. 3/2. तो ये हो जाएगा √3/2.
हाँ, तो cos B is √3/2, तो angle B is nothing but 30 degrees, or you can write down pi/6 radians. So angle B 30 degrees है. I hope others also must have got, everyone must have got this angle B also. अभी फाइंड करना है हमें एंगल C. So now we find out cos C का फॉर्मूला यूज करेंगे. So it is nothing but B square plus A square minus C square upon 2AB. So therefore cos of angle C, B का स्क्वायर 1, A का स्क्वायर 4, C का स्क्वायर 3 upon 2AB. AB 2 2 is 4. So how much is this equal to? तो ये हो जाएगा 1/2. इस पूरी चीज को आप सिंप्लीफाई करोगे तो 2/4, दैट इज 1/2. तो cos C is 1/2. तो how much is C? So C is nothing but 60 degrees, or you can write down pi/3 radians. हाँ, कुछ तो भी एक ही लिखना है. आप या तो 60 डिग्रीज लिखो या pi/3 रेडियंस लिखो. डो नॉट राइट डाउन बोथ ऑफ देम. तो मैंने आपके रेफरेंस के लिए और लिखा है. यू कैन ओनली राइट डाउन आइदर ऑफ देम. दोनों लिखने की जरूरत नहीं है आपको. That's it, problem is over. So you can write down final answer. Hence angle A. ठीक है, एंगल A कितना मिला हमें? ओके, एंगल A is 90 डिग्री, एंगल B is 30 डिग्री एंड एंगल C is 60 डिग्री. एंड सी सम, ये सबका सम भी 180 आना चाहिए एट द सेम टाइम. When we are solving the triangle, means it should be satisfied. ये तीनों का sum should be 180. Always remember that. We are solving for the triangle, तो triangle के सारे properties को satisfy करेगा. I hope I am clear with this procedure, everyone. Yes sir. Okay. तो एक प्रॉब्लम जो साइन रूल से करना था वो भी करके बताया. ये कोसाइन रूल से अभी अब डिपेंड करता है. साइन रूल, इफ ऑल स्मॉल ABC known, then we will prefer applying cosine rule, and if two angles known, one side known, or something like that is given, so we will apply sine rule. So this is nothing but how we are going to solve the problem. So heading कैसे देगा वो आप ध्यान देना. Solve the triangle. प्रीवियस वाले जो प्रॉब्लम्स थे प्रूव दैट वाले, उसमें कैसा आता है? इन एनी ट्राइंगल ABC प्रूव द फॉलोइंग. इसके पहले जो क्वेश्चंस किए हमने प्रूव वाले, तो इन एनी ट्राइंगल ABC प्रूव द फॉलोइंग, वो वाले क्वेश्चंस अलग है. और ये सॉल्व द ट्राइंगल मींस फाइंड आउट द रिमेनिंग थिंग्स. देयर आर टोटल 6 एलिमेंट्स इन्वॉल्व. 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल्स इन्वॉल्व होते हैं. टोटल 6 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट. आई हैव एक्सप्लेन टू यू अर्लियर. चलो प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस.